جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم جو لندن سے چلے بن کے وزیر اعظم، پورے پروٹوکول کے ساتھ دبئی گئے، سعودی عرب گئے، ہر جگہ پہ جا کے جنہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے نئے وزیر اعظم، لیکن اب وہ وزارت عظمیٰ لینے سے گریزاں ہیں۔ جو وزیر اعظم بن کے آئے نا الیکشن کے بغیر ہی، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم کو آپ صدیوں کسی طرح سے سیدھا کر کے باندھ دیں، لیکن جب بھی کھولیں گے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم، آنے والے وزیر اعظم، مستقبل کے وزیر اعظم میاں نواز شریف۔ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کہ ان کا خواب بہت پرانا، ان کے ابا جی نے یہ خواب دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں ان کے روحانی باپ ہے ضیاء الحق، وہ ضیاء الحق جس کو ہمارے ملک کی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ان کی یہ پیداوار ہے، ان کے یہ بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نواز شریف، اور انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ کسی طرح سے میں بھی اپنے باپ کی طرح سے امیر المومنین بن جاؤں۔ جس طرح کی مجلس شورا ضیاء الحق نے بنائی تھی، یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایک مجلس شورا بنا لوں اپنے بندوں کی اور راج کروں، اور مطلب ڈکٹیٹرشپ، سیدھی گل کر لو، اور مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو کسی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ میاں نواز شریف کی حکومت توڑی گئی، کوئی ثاقب نثار دا نام لے لو یا کسی دا بھی، جب انہیں نااہل قرار دیا گیا تو قمر جاوید باجوہ کے ساتھ دیگر لڑائیوں کے ساتھ ساتھ ایک لڑائی یہ بھی تھی۔ وہ مطلب مقتدر حلقے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی امیر المومنین بننے والا کوئی شوق لیے پھر رہا ہے نواز شریف، اور یہ کوئی ہمارے آئین کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی دو ہاتھ کرنے والا ہے۔ ویسے تو آئین کے سگے وہ بھی نہیں ہیں، آئین کو جس طرح سے وہ مروڑتے تروڑتے ہیں اور جس طرح سے اس کا حلیہ بگاڑتے ہیں، وہ مطلب کسے نہیں پتا یار کیا کرتے ہیں ہمارے وہ ادارے، ہمارے آئین کے ساتھ، ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ، ہماری جمہوریت کے ساتھ۔ جمہوریت نہیں ہے تھے، کبھی بھی نہیں سی، کسی بھی طرح کی لولی لنگڑی بھی اسے جمہوریت نہیں کہا جا سکتا۔ بھلا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ایک ہی ریزن کہ جمہور کے عوام ہے، جو جمہور ہے اس کے نمائندے ہوتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار، بڑے بڑے جو لاٹ صاحب ہیں، وہ ان کی اولادیں، گورے کی غلام قوم کے وہ افراد جو گورے کے گھوڑے کھینچتے تھے، بگیاں کھینچتے تھے، ان کی اولادیں بیٹھتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ عام لوگوں کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا وہاں۔ لیکن چلو اسے لولی لنگڑی کہہ لیں، کسی بھی طرح کی پارلیمنٹ کہہ لیں، اس کا حلیہ بگاڑنا چاہ رہا ہے میاں نواز شریف پھر سے، اور چاہتا ہے کہ گلیاں ہون سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ پوری تفصیل اس خبر کی میں نے آپ کو دینی ہے۔ ایک ساتھ ہی ساتھ خبر یہ ہے کہ وہ ایک ماڈل ہے نا ہاجرہ خان بلوچستان کی، جس پر ڈورے ڈالے مبینہ طور پر اس کے بقول عمران خان نے، اور اس کے ساتھ وہ رنگ رلیاں، وہ کیا ہوتا ہے برا بڑا سب کچھ جو ہوتا ہے ان معاملات میں، وہ کیا گیا۔ اس کی آج کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں، جس میں عمران خان کے حوالے سے وہ سب کچھ لکھا ہے جو اس کے ساتھ بیتی۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد میں اس حوالے سے تقریب ہے، اور معلوم نہیں اس وقت تقریب ہو چکی ہے یا نہیں، لیکن کتاب اس کی مارکیٹ میں آ چکی ہے۔
इमरान खान पर कभी खावर मानिका का इंटरव्यू आता है, कभी फर्रुख हबीब का इंटरव्यू आता है, कभी सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आता है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी कुछ, और अब कहते हैं कि बुशरा बीबी का भी आ रहा है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था पूरी तफसील के साथ कि मलिक रियास ने भी इंटरव्यू दे दिया है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान को किस तरह से बनाया गया, कहाँ से उठाया गया, 2014 के धरने में किसने रोटियां दी, किसने खाने दिए, किसने बेड दिए, बिस्तर दिए, किसने रहाइश का लोगों की का बंदोबस्त किया, किसने लंगर का बंदोबस्त किया, वो सारे का सारा 160 मिलियन की कहानी भी मैंने सुनाई, और 460 अरब की भी, 190 मिलियन की, और 460 अरब की भी सारी कहानियां सुना चुका हूँ पिछले व्लॉग में। और अब हाजरा खान ने किताब छाप दी थी, सरीना होटल इस्लामाबाद में उसकी तकरीब, और पता नहीं इस किताब में रिहाम खान की किताब से आगे का कोई चैप्टर है या क्या है। लेकिन आ जाते हैं पहले मियां नवाज शरीफ की तरफ। मियां साहब ने मुख्तलिफ हलकों से कहा है, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, जाहिद कशकोरी, उनकी ये खबर है कि मियां साहब ने मुख्तलिफ हलकों से कहा है कि मैंने करनी है 18वीं तरमीम में तरमीम, मजीद तरमीम, आइन की 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम करनी है। और जो आसिफ अली जरदारी अपनी सदारत के दिनों में पार्लियामेंट को सारे इख्तियारात सदर के दे गया था, वो वापस लेने, ना सिर्फ वो वापस लेने हैं बल्कि और बहुत सारे इख्तियारात सदर को देने हैं, और सदर बनना है मैं, यानी नवाज शरीफ ने, और मेरे छोटे भरा शहबाज शरीफ ने बनना है वजीर आजम। लो कर लो गल, जी 16 महीनों की हुकूमत सी इन्हां दी, इसमें चानन हो नहीं गया था कि किसने हमारे साथ क्या किया। और समझी है इसका वो साबर मिठू है नवाज शरीफ का, इसहाकडार, साकाडार जिसे कहते हैं उर्फ आम में, जिस तरह की महंगाई के ताबड़तोड़ हमले उसने कि मिफ्ता इस्माइल जब इसका वजीर खजाना था शहबाज शरीफ का, तो तब महंगाई का इतना बड़ा फ्लड नहीं आया था जो इसहाकडार लेके आया है। ऐसते भी टैक्स ला दो, औसते भी टैक्स ला दो, भी शय महंगी कर दो, और भी शय महंगी कर दो, जीना हराम कर दिया था लोगों का। इस इसहाकडार ने साबर मिठू जो है नवाज शरीफ का समधी, जो है कमर जावेद बाजवेद है ना समधी साबर मिठू, और इसे भी मतलब हमारे सहाफती हलकों में कमर जावेद बाजवा के की तरह ही नवाज शरीफ का समधी जो है उसे साबर मिठू का कहा जा रहा है आजकल इसहाकडार को। वही इसहाकडार फिर आएगा नवाज शरीफ के साथ, या वजारत उज़्मा अगर शहबाज शरीफ हुई तो उसके साथ यहाँ सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है कि जो नई पार्लियामेंट होगी जिसमें अक्सरियत अभी तक दिखाई नहीं दे रही नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ उसकी बारी आती बनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में अक्सरियत उसकी होगी, क्योंकि अक्सरियत दिलाने वालों ने उसके साथ सौदा कर लिया है, तय कर लिया है सारा मामला। पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत होगी, वो कोई कानून साजी करवाएगा, आइन में तरमीम करवाएगा, या कुछ भी करके वो कहता है कि मैंने सदर पाकिस्तान बनना है, सारे इख्तियार सदर के पास हो, पार्लियामेंट जो है बांझ हो, इसके हाथ वस कुछ ना होवे, इसके पास इख्तियारात ना हो, और मैं जो चाहूं जिस तरह से चाहूं वो मैं करूं, मैं स्याह करूं, सफ़ेद करूं, मेरे इख्तियारात को कोई चैलेंज ना करे, मेरे अहकामात को चैलेंज ना करे। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई पार्लियामेंट का कोई रुकन, कोई अपोजिशन हो या कोई दूसरा बंदा, किसी की मजाल नहीं हो कि मेरे काम में रोड़ा अटकाए। अच्छा, अब ये सारे मामला जो हैं फर्ज कर लें कि ये हो गए, सदर बन गया मियां नवाज शरीफ, फर्ज कर ले, फर्ज करने में क्या हर्ज है। तो काम क्या किया है भाई इन्होंने, आज तक जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि क्या किया है इन्होंने। एटम बम का धमाका किया, एटम बम बनाया किसने, जुल्फकार अली भुट्टो ने। बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी उस एटम बम के हवाले से उस अपने हिस्से के मशकीज़े भर भर के पानी डाला।
क्रेडिट कि मैंने धमाके किए, वही इमरान खान वाला क्रेडिट कि मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता। मतलब दूसरी टीम ने कुछ नहीं किया, एक बंदे ने जीता। इसी तरह से ये मियां नवाज शरीफ क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने धमाके किए। चलो जी, धमाके कर लिए। अगर पोखरान में उस वक्त इंडिया धमाके ना करता तो वो क्या मियां नवाज शरीफ ने धमाके करने थे? नहीं करने थे। अरे जी, हमने करोड़ों डॉलर अमेरिका के मुंह पे मारे और हमने कहा हमने धमाके करने ही करने। अमेरिका ने कहा था इतने डॉलर ले लो और धमाके ना करो। रिकॉर्ड दुरुस्त करने वाला है बहुत हद तक। असल मुतालिया पाकिस्तान जो है वो नई नस्ल को पढ़ाने वाला है बहुत हद तक। बड़े झूठ बोल लिए हमारे बड़ों ने भी और इन्होंने भी। अब इन झूठ के परिंदे जो हैं ये फाड़ के फेंकने पड़ने हैं और सच सच अवाम के सामने रखना पड़ना है। ये पेपर मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है यार। सच क्यों नहीं दसते पढ़ते? मरते क्यों है सच दसते हुए? नवाज शरीफ चाहता है कि 18वीं तरमीम का हुलिया बिगाड़ दूं, इख्तियारात जो है वो सारे के सारे सदर के पास चले जाए, आरिफ अलवी का इस्तीफा लूं, उसे घर भेजूं और खुद राज करूं इस तरह का कि मुझे कोई भी बंदा चैलेंज ही करने वाला इस पूरे मुल्क में ना हो। गुर्बत लाऊं, महंगाई लाऊं, मोटरवेज बनाऊं ना बनाऊं, महंगी बिजली के प्लांट लगाऊं ना लगाऊं, भूख से मार दूं इस कौम को। मनसूबा तो वैसे आपस की गल आ, मियां नवाज शरीफ के जिन्ने भी टनौर आ, सवाए पीली टैक्सी के, सवाए ये मोटरवेज के, सवाए ये ऑरेंज ट्रेन के, इनके पास क्या मनसूबा होता है? अवाम के लिए क्या मनसूबा होता है? कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान के हवाले से कोई बात होती है इनके पास? पीपल्स पार्टी ने अगर ये नारा मारा रोटी कपड़ा और मकान वाला, तो उन्होंने भी नारा ही मारा। और यार हमारे साथ सबने ही हाथ किया। ये जो हेल्थ कार्ड है, जब ये जो इमरान खान ने शुरू किया, जब इसके राज खुलेंगे तो एक तरह की नई क़यामत बर्पा हो जाएगी। कितने लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के आईडी कार्ड पे हेल्थ कार्ड बन गए। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, एक बड़ी खबर दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। उन हेल्थ कार्ड वालों के जिन जिन के हेल्थ कार्ड बने थे, सारे मरीज नहीं थे। हजारों लाखों ने अस्पताल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनके नाम के बिल बने हुए। वो पैसा खा लिया गया। ये स्कैंडल आएगा और आप देखेंगे कि कितने अरब रुपए का टीका यहां ही लगा दिया इमरान खान ने और उसके हवारियों ने, उसकी कैबिनेट ने और उसके ये महकमा हेल्थ के लोगों ने। ये जब आएगा ना, ये गोगी शोगी को भूल जाएंगे आप। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। खबर मनीके शनीके और गोगियां शोगियां और बुशरा बशरा, उनकी करप्शन बहुत छोटी हो जाएगी। जितना बड़ा हेल्थ कार्ड में हाथ मारा गया, फर्ज कर लें मेरे नाम पे अगर हेल्थ कार्ड बना हुआ है ना, मैं तो बीमार नहीं, मैं तो कभी अस्पताल गया नहीं, लेकिन मेरे नाम की पर्ची बनी अस्पताल में, मेरा इलाज हुआ अस्पताल में, पैसे काटे गए मेरे नाम के और मुझे खबर ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो आने वाला है। बात नवाज शरीफ से हम घुमा के कहीं और ले जाते हैं, मजबूरी है। बातें ही इतनी हैं और इतनी कड़वी हैं, इतनी खौफनाक हैं, इतनी बदबूदार हैं कि इनमें से निकल के बंदा जावे किथे। बहरहाल नवाज शरीफ का ये मंसूबा है। वो चाहता है कि वो सदर पाकिस्तान बने। वो चाहता है कि पार्लियामेंट के पास जो इख्तियारात है वो सारे के सारे मेरे पास आ जाए। मैं अपनी मर्जी की शूरा बनाऊं, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट बनाऊं, अपनी मर्जी के लोग रखूं और मुझ पर किसी तरह का कोई पुछण वाला बंदा मेरे सिर पे ना होवे। मैं स्याह करूं, सफेद करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, ना करूं या करूं, जो भी करूं, मुझे कोई टच करने वाला ना हो। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और इस हवाले से नवाज शरीफ ने उन्हें जेड़े लेके आए ना, उन्हें मैसेज दे दिया है और पूरे जोर नाल मैसेज दे दिया, पूरे जोर नाल मुतालबा किया कि मैनू वजीर आजम नहीं,
मैनू सदर पाकिस्तान बनाओ, अरफ अलवी नू घर खिलाओ। ये मामला हुआ है भाईजान। दूसरी तरफ वो है खातून हाजरा खान, उसकी किताब का मैंने आपको बता ही दिया है कि इमरान खान के खिलाफ उसमें कौन सा सांप होगा, संपोलिया होगा, उसमें कोई डुमुई होगी, क्या चर्चा हो। आने वाले दिनों में हम उसके किताब का सुनेंगे। ये एक आध दिन में आपके सामने वो भी आ जाएगा। तीसरी बड़ी अहम बात मैंने करनी है, मैंने आपको बताया था कि लाहौर प्रेस क्लब में जो मेरे साथ शाम थी, शाम पजीरा ही मेरी, उस शाम एक बुजुर्ग आए थे वहाँ, और जाहिर है मैंने फेसबुक पे भी उसका लगाया था नोटिफिकेशन जो शाम हो रही थी। कम्युनिटी में आप जाके अभी भी देख सकते हैं। वो प्रेस रिलीज भी लगाई थी, पोस्ट लगाई थी पूरी, मैंने फेसबुक पे भी लगाई, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लगाई। वो बुजुर्ग कहीं से पढ़ के आ गया कि सफ़ी होने प्रेस क्लब मैंने मिल ही जाएगा। वो बुजुर्ग आए, तकरीब के इख्तिताम पर वो गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, रोए वो, मुझे भी रुलाया। जो गुर्बत है हमारे मुल्क में, जिस तरह से बेबस और बेकस हैं यहाँ के लोग, वही एक नोहा था उनके पास। जवान बच्चियों के बाप, बुजुर्ग, शरीफ बुजुर्ग, चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा यार, उसने हेल्प के लिए अपील की थी। मैंने मतलब यार मैं तो खुद त्याड़े को अपील की थी अपने मामलात में, तो मुझे ये बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन आप जानते हैं मेरा अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर कोई उस बुजुर्ग की, कोई उसकी इल्तिजा को समझने वाला हो, कोई उसकी हेल्प करने वाला हो, तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।